to release nirvana. My last prayer to everyone, therefore, is that one should not fail to thoroughly understand this ancient science of worldly life as early as possible. Once said by Sri Bal Gangadhar Tilak. Henry David, an American author and poet, also opined, "In the morning, I bathe my intellect with the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our literature seems punny and trivial." So namaste everyone, this is Arzu on behalf of the Advait Society of Delhi University and ISKCON Youth Forum Delhi. Welcome each one of you to our fourth session of Bhagavad Gita. This is our moral vision to encompass 18 chapters of Bhagavad Gita, which is the manual to mankind in the series of 18 sessions. I wholeheartedly express my gratitude to ISKCON Youth Forum Delhi and Advait Society for taking the initiative to enlighten the young minds with the blissful and divine knowledge of Bhagavad Gita. Advait is an endeavor to help students transcend the difficulties and uncertainties that are almost inseparable. Inaugurated on the 10th of July 2021, it is dedicated to raising human consciousness, promoting selfless service, and facilitating a suitable ambience to the seekers of truth. ISKCON Youth Forum Delhi is the youth wing of Sri Sri Radha Parthasarathi Temple, a branch of the International Society of Krishna Consciousness. It is aimed towards nourishing the hearts of today's youth with a sublime message of the scriptures and helping them flourish in their lives in a wholesome manner. हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हंसराज महाविद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमा का, जिनके मार्गदर्शन में अद्वैत इस सत्र को आयोजित कर रहा है। साथ ही हमारा विशेष आभार ISKCON यूथ फोरम दिल्ली के उप निर्देशक हिज ग्रेस श्री अरविंदक्ष माधवादास प्रभु जी का, जिनके पुरुषार्थ से यह संभव हो पा रहा है। Now, I would like to call Devansh for shloka recitation. Hare Krishna everyone. Evam parampara praptim imam rajarshyo vidu sakalena ihameta yoganashta parantapaha. इस प्रकार यह परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है, अतः यह ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवांश इन सुंदर श्लोकों के लिए। आज के सत्र का विषय रहेगा अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। Our today's topic will be chapter 4 transcendental knowledge, for which we are joined by His Grace Sarvamangal Prabhuji. Prabhuji completed his bachelor's in engineering in computer science from IET Indore in 2007. He got placed in Newgen Software Technologies and worked there for 3 years as a software engineer. He has cleared the CAT exam, got interview calls from IIM Indore, Kozhikode for CAT 2009. He joined ISKCON in March 2010 to preach the message of timeless Vedic knowledge like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, especially to the young minds. He was sent to ISKCON Ghaziabad in July 2011, since then coordinating the activities of youth preaching in different areas under ISKCON Ghaziabad. And currently, Prabhuji is looking after all the outreach programs of Rudrapur and Kashipur in Uttarakhand. He personally guiding many young boys in their lives, both materially and spiritually. So before calling Prabhuji, I would like to bring to the notice of all that if in case you have any queries related to today's chapter, then kindly drop them down in the chat box. Prabhuji will be taking up your queries at the end. Also, to avail of the certificate of this course, 75% of attendance is mandatory. A feedback form containing 3 questions related to today's session will be shared in the chat box, and you all are requested to kindly fill that form because your attendance will be marked through that form only. तो अब मैं प्रभु जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे आएं और आज के सत्र का शुभारंभ करें। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, you are audible, Prabhuji. Okay. So before we start, I would like to chant Mangalacharan prayers, and then we will get on with the discussion today. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunath Thanvitam Tam Sajivam Advaitam Savadhutam Darjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्री चैतन्यम् ईश्वरं श्री गुरुं दीनतारणं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। So today we will be discussing about 4th chapter of Bhagavad Gita, which is titled as Transcendental Knowledge. It contains 42 verses,
स्क्रीन दिख रही है सबको? इज स्क्रीन विजिबल? जी प्रभु जी। ओके। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जो कर्म योग के नाम से कहा गया है, थर्ड चैप्टर में। उसमें रिनंसिएशन के बारे में आपने पढ़ा, योगा लैडर के बारे में आपने पढ़ा होगा, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है, किस तरीके से होता है। और अर्जुन ने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हम न चाहते हुए भी कुछ गलत कार्य, कुछ पाप कार्य कर बैठते हैं। तो उसका उत्तर भगवान ने दिया था लस्ट के बारे में, कि काम क्या है, क्रोध क्या है, कैसे लस्ट को कंट्रोल करना है। ये सारी डिटेल्स जो चौथा चैप्टर है इसमें मेनली ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में चर्चा किया गया है। अगर मोटा मोटा डिवाइड करें इस चैप्टर को, तो पहले के 10 श्लोक हैं चैप्टर 4 के फर्स्ट श्लोका से 10th श्लोका तक, तो इसमें इटर्नल एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और कई सारे मिसकंसेप्शन अर्जुन के रिमूव करते हैं भगवान एजुकेशन के बारे में, और क्यों भगवान अवतार लेते हैं उसको तो 8th श्लोक में बताया गया है। 11 से लेकर 15 तक भगवान जो है वो मिसकंसेप्शन अर्जुन के रिमूव करते हैं। कर्मों के चक्र से कैसे डील करना है, कर्मों के साइकिल से, वो 16 से 24 में बताते हैं। और यज्ञ के बारे में और श्रद्धा के बारे में बताते हैं 25 से आगे। और कैसे एक बोनाफाइड गुरु की शरण लेनी चाहिए, ये भी 25 से 42 के बीच में बताते हैं। इसको और छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करें तो सबसे पहले 4.1 से लेकर 4.4 के बीच में भगवान जो है वो परंपरा के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन से बोलते हैं चौथे अध्याय के शुरुआत में, कहते हैं भगवान पहले श्लोक में चौथे अध्याय के, कहते हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत, कि मैंने इस योग विद्या का उपदेश, अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सबसे पहले ये उपदेश किसको दिया गया था भगवान के द्वारा? सूर्यदेव को दिया गया था। और उसके बाद विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान इंस्ट्रक्टेड द सेम नॉलेज टू मनु, who is the father of humankind, father of mankind, and Manu instructed it to Ikshvaku. इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। तो ये चीज एक चीज क्लेरिफाई होना चाहिए सबको। कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में, स्पेशली सनातन धर्म को फॉलो करने वालों में भी कंसेप्शन है, अलग अलग कंसेप्शन हैं देवताओं को लेके। कोई कह सकता है कि अरे ये सूर्य को कैसे भगवान ने ज्ञान दे दिया। तो जब भी भगवान कह रहे हैं या वैदिक शास्त्र में जहाँ कहीं भी ये बोला गया कि भगवान ने सूर्य को दिया ज्ञान, या सूर्य के पुत्र हुए मनु, या चंद्रमा ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आते हैं, भगवान राम जो सूर्य वंश में आते हैं, तो सूर्य का वंश कैसे हो सकता है? सूर्य तो हमने सुना है मॉडर्न साइंस में कि सूर्य आग का गोला है और वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो वो सन है। और मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ का, और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स हाउ वी आर एबल टू सी द मून, वगैरह वगैरह। तो वो एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो जब भी वैदिक शास्त्र में बोला गया है कि सूर्य को भगवान ने ज्ञान दिया, इसका मतलब है कि सूर्य जो प्लेस है, सूर्य जो जगह है जो हम देखते हैं, वहां पर भी लाइफ है, सूर्य पर भी लाइफ है। और वहां की जो लाइफ है, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन लोगों का जो किंग है, उन लोगों का जो राजा है, उसको सूर्यदेव कहा जाता है, वो सूर्य है। और इसी तरह से चंद्र पर भी लाइफ है, मून पर भी लाइफ है अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर। और वहां पर जो किंग है, मून का जो किंग है, उसको चंद्रदेव कहा जाता है।
तो कई बार जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो क्रिकेट खेल रही है, आप बोलेंगे कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया, तो इंडिया, कोई बोलेगा कि अरे इंडिया, इंडिया क्या, इंडिया इज अ प्लेस, इंडिया इज अ प्लेस, इंडिया इज अ कंट्री एंड साउथ अफ्रीका is also a country. So how can South Africa defeat India? How can South Africa defeat India? साउथ अफ्रीका क्या वो जमीन का टुकड़ा उड़ के आ गया क्या, और हमारे साथ युद्ध शुरू हो गया क्या जमीन के टुकड़ों में? ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वाज रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका कंट्री and there is a group of people who is representing India country, and they played together, they fought together in a friendly way in the game of cricket, and then one side won, one side lost. दूसरी तरीके से जब ये बोला गया कि सूर्य ने ज्ञान प्राप्त किया भगवान से, भगवान ने सूर्य को दिया, तो इसका मतलब है कि सूर्य देवता जो वो जो किंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर पॉपुलेशन ऑन द सन, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको ये ज्ञान भगवान ने दिया। और फिर सूर्य, उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, वैवस्वत मनु। तो मनु भी कई प्रकार के हैं, ये एक ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा के एक दिन में, वैदिक लिटरेचर के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 प्रकार के मनु होते हैं। वो साइकिल क्या है, युगों का साइकिल, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का जो साइकिल है उसको एक चतुर्युग बोलते हैं। और जो ऐसे चार युगों के 71 साइकिल्स जो हैं उसमें एक मनु का शासन होता है। तो मनु वो है, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वैदिक लिटरेचर के अनुसार, ये जो 7th मनु है, जो सन सूर्य के पुत्र हैं, उनका ये टाइम पीरियड चल रहा है अभी। और उसके अंदर दिस इज द 28th साइकिल ऑफ 4 युगस, 4 युगों का ये 28वां साइकिल है। सो एनीवे दैट्स अनदर सब्जेक्ट मैटर। तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया सूर्यदेव को, सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता गया। एवं परंपरा प्राप्तम, फिर आगे कह रहे हैं सेकंड वर्स में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्स, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. तो सूर्य से, भगवान से सूर्य, फिर सूर्य से मनु, मनु से फिर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद फिर और वंश में आगे जाके आगे और राजाओं की लीनियज जाती है, फिर उसमें आगे जाके भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं। तो ऐसे करके so this supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in the course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो ज्ञान जो है ये इटर्नल ज्ञान है। जब हम ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज्ञान जो है वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था कोई नॉलेज, और भगवान सडनली उसको प्रकट कर दिया। तो सारा ज्ञान इटर्नल है, एजुकेशन इटर्नल है, वो कई बार लॉस्ट हो जाती है काल के प्रभाव से। काल का ये नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ काल, काल शक्ति, दिस इज द नेचर ऑफ टाइम, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। So this is the subject matter in the 11th chapter of Gita, कि कैसे काल जो है वो हर चीज डिस्ट्रॉय करता है। तो अर्जुन ने आगे जाके पूछा भी है भगवान से कि आप हो कौन? तो कृष्ण जब विराट रूप दिखा रहे होते हैं तो उस समय कहते हैं कि मैं काल हूँ और मैं सारे लोगों का नाश करने के लिए आया हूँ। So the quality of time is, the nature of time is to destroy काल। इसलिए कोई डेथ भी हो जाती है तो हम कहते हैं कि काल आ गया उसका। काल मतलब डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ भगवान का जो डिस्ट्रक्टिव फीचर है वो टाइम है। तो काल के प्रभाव से वो ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि काल का प्रभाव ये था। तो फिर कहते हैं 3rd वर्स में कहते हैं कि स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्।
और जब अर्जुन को गीता सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, the same knowledge, this supreme science was thus received through disciplic succession. That very ancient science of the relationship of the supreme is today told by me to you. वो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूं दोबारा से। क्यों दे रहा हूं? बिकॉज भक्तों से में सखा चेती। अगर आप लोगों के पास गीता है तो आप लोग रेफर कर सकते हैं। बिकॉज यू आर माई डिवोटी, आप मेरे भक्त हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, and can therefore understand the transcendental mystery of this science. तो भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और सखा थे, फ्रेंडली डिस्पोजिशन था उनका भगवान से। तो एक्चुअली भगवत गीता का नॉलेज वही व्यक्ति दे सकता है, वही व्यक्ति रिसीव कर पाएगा, उसको समझ पाएगा जो अर्जुन की तरह क्वालिटीज जिसके अंदर है। अर्जुन की तरह क्वालिटी क्या है? कि वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए। He should be open to bhakti. He should have friendly disposition towards Krishna. If somebody is envious of Krishna, अगर कोई सोचता है कि अरे ऐसे कैसे यार, कृष्ण करे तो रस लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इसका मतलब है, अगर कोई ऐसा सोचता है, इसका मतलब है कि कृष्ण से उसको ईर्ष्या है, जलन है। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये दोस्त का लक्षण नहीं है। दोस्त का मतलब है कि वो अपने दोस्त की हेल्प करे, मदद करे, उससे द्वेष ना करे, उसके गुणों से, उसके अंदर जो क्वालिटीज है उससे द्वेष ना करे, उसकी क्वालिटीज देखकर उसको खुशी होनी चाहिए, न कि दुख। लोग कहते हैं कि कृष्ण की पूजा क्यों करें, अब भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण हूँ, हम सभी कृष्ण क्यों नहीं हो सकते? तो ऐसा सोचना ये एक तरह का द्वेष का लक्षण है। अर्जुन के अंदर इस तरह का कोई द्वेष की भावना नहीं थी। He was disposed towards Krishna in a friendly way. और यहाँ तक कि अर्जुन जो है वो जब महाभारत की लड़ाई होने जा रही थी, तो आप सबने सुना होगा कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। तो उस समय भगवान ने कहा कि मुझे तो दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। तो एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ दुर्योधन रहेंगे, दूसरी तरफ मेरी सारी नारायणी सेना रहेगी जो बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैं चाहिए बिना शस्त्र अस्त्र उठाए, या फिर मेरी सेना चाहिए, पूरी की पूरी आर्मी चाहिए? तो अर्जुन वाज द वन हु सेड कि नहीं कृष्ण, मुझे आप चाहिए। आप शस्त्र उठाए चाहे ना उठाए, बट आई वांट यू बाय माय साइड। दिस इज फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स ऐसा नहीं कि किसी के हम पोजेशन से अट्रैक्ट हों, उस पर्सन से अट्रैक्ट हों, पर्सन से दोस्ती करें, उसके स्वभाव को समझें। ये नहीं कि उसके पास क्या है उस चीज से अट्रैक्ट हों। तो वो व्यक्ति जो उसके अंदर भक्ति का भाव है, जो भक्ति को समझने के लिए, भक्ति को स्वीकार करने के लिए रेडी है। ऑफ कोर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस में या वैदिक नॉलेज में, वैदिक शास्त्रों में हमेशा इंक्वायरी को इनकरेज किया गया है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रश्न पूछा तो आप हेरेटिक हैं या आप काफिर हैं या ऐसा कुछ है। जेन्युइन इंक्वायरीज हमेशा एनकरेज की जाती हैं। सो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड, देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर फ्रेंडली डिस्पोजिशन नहीं है कृष्ण के प्रति, अगर आप भगवान के फ्रेंड नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर आप गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो भक्त बनना चाहिए अगर गीता को समझना है और उसका पूरा का फुल फायदा अपने जीवन में उठाना है तो। So that's what is mentioned here. Devotee, friend, relevant inquiry and following the instructions. तो वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो भक्त है और सखा है।
तो क्वेश्चन पूछेगा भगवान से, दोस्त है तो प्रश्न पूछेगा। अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस का आंसर मिलता है तो उस आंसर को भी फॉलो करना है। अगर कुछ रिकमेंडेशन मिलता है तो उसको भी फॉलो करना है। अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं उसके बाद जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसको भी फॉलो करना है। फॉलो करने से पहले हम फिलोसॉफी, हम सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझ लें बाय इंक्वायरी। इफ वी इंक्वायर एंड इफ वी गेट द आंसर वी शुड फॉलो द प्रोसेस। कई बार लोग सोचते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सीकिंग, दैट इज ट्रू, वी शुड सीक, और वैदिक नॉलेज इज नॉट अबाउट नॉट सीकिंग। ऐसा नहीं कि सिंपली आप एक ब्लाइंड फेथ करें, यू हैव टू सीक, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा इज नेसेसरी। लेकिन ये नहीं कि परपेचुअली सीकिंग ही चलती जाए और जब लॉजिकल आंसर मिल रहा है किसी प्रश्न का उसको भी स्वीकार ना किया जाए। नहीं, जस्ट वी आर सीकिंग, you can't seek eternally, we have to seek, but we have to, when we find the true knowledge, when we find the logical knowledge, जब हमें सही ज्ञान प्राप्त हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। तो ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे? कई लोग होते हैं जो ज्ञान देना चाहते हैं। कई सारे संसार में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे? तो हम देख सकते हैं कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तभी हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जैसे आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए वहां से जो भी डिग्री प्राप्त की जाएगी वो वैलिड होगी और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। उसको आप कहीं पे शो करेंगे कि आई एम बैचलर्स या आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इट हैज अ ग्रेट वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी से, सो कॉल्ड फेक यूनिवर्सिटी जिसने फर्जी लाइसेंस बनवाया हो अपना, तो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज भी ना हो, वहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां से अगर आप डिग्री भी ले लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरीके से जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लेते हैं तो उसका भी सोर्स क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? इफ द सोर्स इज ऑथेंटिक then we can receive that knowledge, then it is beyond questions। बट अगर सोर्स ही उसका क्लियर नहीं है तो फिर देयर इज नो गारंटी कि वो ज्ञान जो है वो सही होगा। आजकल हमारे देश में सब लोग के पास इंटरनेट है, गूगल है, व्हाट्सएप है, सबके पास है। तो कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए आप गूगल कर सकते हो। और गूगल पे ज्ञान कहाँ से आता है? somebody is uploading that knowledge, बट वो एक ही ज्ञान के बारे में आपके पास कई सारी लिंक्स आ जाएंगी, तो कौन सी लिंक ऑथेंटिक है वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो ज्ञान हमें प्राप्त करना है लेकिन ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा, अप्रूव्ड होना चाहिए। तो जो अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल मिलता है उसको कहते हैं संप्रदाय। उसको संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय मतलब कोई एक डॉगमेटिक ये नहीं है चीज। संप्रदाय मीन्स आपका ऑथेंटिक बोनाफाइड स्कूल ऑफ थॉट। जैसे आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं एज फार एज मंडेन नॉलेज इज कंसर्न। तो वहां से लोग डिग्री लेना चाहते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज भी
जिस स्कूल ऑफ थॉट से मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की जो डिग्री है, जो ऑथेंटिकेशन है, स्पिरिचुअल नॉलेज का ऑथेंटिकेशन जहाँ से मिलता है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो कई सारे संप्रदाय हैं और ये बताया गया है कि वैदिक शास्त्रों में कि संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला मता, कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन अगर आप संप्रदाय में, एक प्रामाणिक संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई वैल्यू खास नहीं रह जाता। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सो any mantra that does not come in disciplic succession is considered to be useless. Therefore, 4 divine individuals will appear in the age of Kali to found disciplic schools. इसी तरह से जो आध्यात्मिक, जो भक्ति का ज्ञान है उसका प्रचार के लिए देयर आर 4 वैष्णव संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं प्रामाणिक संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से, ब्रह्मा जी से, भगवान शंकर से और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों से ये ज्ञान प्रकट होता है। तो जो लक्ष्मी जी से जो परंपरा चली आ रही है, लक्ष्मी जी से जो परंपरा चली आती है उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। भगवान नारायण जो है वो लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और लक्ष्मी जी से फिर वो परंपरा आगे बढ़ती है। तो उस संप्रदाय में जो आचार्य हैं कलयुग में, वो आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य। अभी कल के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक बहुत बड़े 216 फीट के अर्चा विग्रह को इनॉग्रेट किया। वो है श्री रामानुजाचार्य, जो साउथ इंडिया में 11वीं सेंचुरी में प्रकट हुए थे। तो वो लक्ष्मी देवी के संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। तो वो है रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय उसका नाम है, जो लक्ष्मी जी से आता है। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को, जिसे श्रीमद् भागवतम में भी मेंशन किया गया है, तेने ब्रह्म हृदय अधिकवय मुह्यंति यत् सूरय। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को। तो वहां से जो संप्रदाय आता है उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। और उसी संप्रदाय में आगे जाके ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं नारद जी, नारद जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदव्यास, और वेदव्यास जी से फिर आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं मध्वाचार्य। तो ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और फिर उसी संप्रदाय में आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और इसी संप्रदाय में आगे जाके श्रील प्रभुपाद जी भी आते हैं, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी। और फिर ये ब्रह्म संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी से चला आ रहा है। और एक संप्रदाय है जो भगवान शंकर से आता है। भगवान नारायण ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान शंकर को, जिनका दूसरा नाम रुद्र भी है, और रुद्र से फिर वो ज्ञान आगे बढ़ता है। तो इस संप्रदाय के आचार्य हुए कलयुग में, जिनका नाम है श्रील विष्णु स्वामी। और इसी संप्रदाय में आगे चल के श्रीपाद वल्लभाचार्य प्रकट होते हैं, और उनसे वो परंपरा आगे बढ़ती है। और अगला संप्रदाय है जो ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है, वो है कुमार संप्रदाय, जो सनक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। और वो लोग, उनकी योग शक्ति से उनके अंदर इतनी पावर है कि उन्होंने अपनी एज को बढ़ने नहीं दिया, एजिंग को उन्होंने रोक दिया। और कितनी एज रखी है अपनी, एज इफ 5 साल के बालक हो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो दे वर द फर्स्ट वंस जो सृष्टि में प्रकट हुए, और उन्होंने अपनी एज को बढ़ने से रोक दिया। दे वर सच ग्रेट योगीज। तो उनसे एक परंपरा आ रही है, और उनकी परंपरा में आगे जाकर कलयुग में एक महान आचार्य प्रकट हुए, जिनका नाम है निम्बार्काचार्य। तो ये जो 4 हैं, ये वैष्णव संप्रदाय हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो वही मैंने आपको बताया
Ramanuja was chosen by goddess Lakshmi to represent her sampradaya. Madhvacharya was chosen by four-headed Brahma. Vishnu Swami was chosen by Rudra. Nimbarka or Nimbaditya was chosen by four Kumaras. Lord Krishna से ब्रह्मा, फिर मध्वाचार्य, लॉर्ड कृष्णा से लक्ष्मी, इसमें रामानुजाचार्य, लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड शिवा, फिर विष्णु स्वामी और लॉर्ड कृष्णा से चार कुमार, जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, उनसे फिर निम्बार्काचार्य. सो दिस इज द परंपरा जिसमें इस्कॉन भी आता है. तो कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, उसके बाद पद्मनाभ, नरहरि, मध्वा, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, इस तरह से आगे जाके आएंगे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इसी में आगे जाकर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद से परंपरा है. सो पॉइंट ये था कहने का कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो परंपरा में प्राप्त किया जाता है, जिसको संप्रदाय कहते हैं. तो प्रामाणिक संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. जैसे आपका कमिटमेंट है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं, उसमें आप क्लासेस अटेंड करते हैं, और जब क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है, फिर उसको आप अपने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं उसके नॉलेज को. उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी परंपरा में प्राप्त किया जाता है, फिर उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है. सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअल नॉलेज आल्सो इज ट्रांसफर्ड. तो अब थोड़ा आगे चलते हैं. व्हेन डज लॉर्ड अपीयर, आगे का जो सेक्शन है इसमें बता रहे हैं भगवान कि भगवान कब प्रकट होते हैं और भगवान क्यों प्रकट होते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या फायदा होता है. तो जब भगवान ये सब बता रहे थे कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया सृष्टि के प्रारंभ में, और फिर सूर्य ने फिर ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया. तो अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया. क्या क्वेश्चन आया? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति. तो अर्जुन said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this sense to him? आपने कहां से बोला? आप तो मेरे एज के हो. अर्जुन ने भगवान से कहा. द्वापर युग के अंत की बात है, मतलब आपसे लगभग 5,000 साल पहले, और सूर्यदेव तो इतने पुराने हैं. तो आपने उनको ज्ञान कब दे दिया? और आप तो मेरे एज के हो, मेरे फ्रेंड हो आप, तो आपने उनको ये ज्ञान कब दे दिया? तो भगवान कहते हैं, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. Many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subject of enemy. तो भगवान के कई जन्म हुए हैं और हमारे भी कई जन्म हुए हैं. भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं भगवान की मेरे भी कई जन्म हुए हैं अर्जुन, और तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं, लेकिन तुम वो सब भूल गए, लेकिन मुझे सब कुछ याद है. तो भगवान ने और हम में ये एक मेजर डिफरेंस है कि भगवान को सब कुछ याद रहता है. जो सुप्रीम है, परम भगवान है, परम सत्य है, परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है, सर्व कारण कारणम है, उनको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ पता रहता है, कभी वो कुछ भूलते नहीं. वो भी जब प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, लेकिन उनको सब कुछ याद रहता है. लेकिन हम चूंकि भगवान नहीं है, हम भगवान के माइन्यूट से छोटे से अंश हैं, इसलिए हम सब कुछ भूल जाते हैं. वी डोंट रिमेम्बर इट, बट कृष्ण रिमेम्बर्स एवरीथिंग. अजोप्य सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोप्य सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. तो ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, अजोपी सन, मैं अजन्मा हूँ. हालांकि कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने के दिन को हम जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण की मैं अजन्मा हूँ. अजोपी, अज मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ, और सन अव्ययात्मा, अव्ययात्मा मतलब कि मैं ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटेरियोरेट्स. भगवान के शरीर जो है वो कभी
उसका ह्रास नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होता। जैसे हम लोग, हमारा शरीर नष्ट नष्ट हो जाता है, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे dwindle होते होते हमारे दांत टूटने लगते हैं, पेट में खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, और हमारी बॉडी डिटेरियोरेट हो जाती है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो डिटेरियोरेट नहीं होता कहीं भी। Although I am Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कि मैं आता हूँ अपनी माया का आश्रय लेकर, अपनी माया से मैं आता हूँ, अपनी शक्ति से आता हूँ। आत्ममाया, कोई और माया नहीं है, भगवान की खुद के कंट्रोल में है जो माया, भगवान की खुद की कंट्रोल से आते हैं, खुद की इच्छा से। और कब कब आते हैं उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself to deliver the pious and annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. तो रिलीजन का मतलब, जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, जो मैंने जो कहा, भगवान कह रहे हैं whenever there is a decline in religious practice, तो रिलीजन की जो बात करें उसको हम, जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन का, रिलीजन की डेफिनेशन दी जाती है एज अ काइंड ऑफ फेथ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं। रिलीजन वर्ड जो है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है धर्म वर्ड का। धर्म के कोई इक्विवेलेंट यूनिवर्सल वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। तो कभी कभी धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन भी होता है, कभी कभी धर्म का मतलब ड्यूटी भी होता है, कभी कभी धर्म का मतलब नेचर भी होता है, कभी कभी धर्म का मतलब राइटियसनेस भी होता है, कभी कभी धर्म का मतलब व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब भी होता है। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में धर्म वर्ड के लिए, तो इसलिए रिलीजन वर्ड यूज कर लिया जाता है। बट रिलीजन इज अ वेरी माइनर एस्पेक्ट ऑफ धर्म। तो भगवान प्रकट होते हैं, ये बहुत फेमस 2 श्लोक हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और डिलीवर द पायस, जो साधु हैं, जो पायस लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो भगवान प्रकट होते हैं, और इस ज्ञान को, नॉलेज, इस ज्ञान को जानकर क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjun. जो भगवान श्री कृष्ण के एक्टिविटीज को समझ लेता है अच्छी तरीके से, उनको तत्वतः समझ लेता है। तत्वतः का मतलब क्या है? कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो लौकिक जन्म नहीं है। चाहे भगवान कृष्ण का जन्म हो, चाहे भगवान जब राम के रूप में आते हैं उनका जन्म हो, चाहे या भगवान जब नरसिंह के रूप में आते हैं तब उनका जन्म हो, चाहे जब भगवान वराह के रूप में आते हैं, एक सूकर के रूप में आते हैं, तब उनका जन्म हो। भगवान का जन्म कभी भी हमारे सामान्य जीवों के जन्म की तरह नहीं होता है। भगवान का जन्म और कर्म उनके दिव्य है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान के प्रकट हुए मथुरा में, तो कैसे प्रकट हुए? छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए, और उनके 4 भुजाएं थी पहले से, जन्म लेते से चतुर्भुज रूप में थे,
और पीताम्बर पहने रखा था, और मोर पंख भी था, और मुकुट था, और शंख चक्र गदा सब कुछ हाथों में था, और पूरा प्रकाश हो गया, पूरे जेल के अंदर प्रकाश हो गया। और भगवान के योग माया से उस जेल में, कंस के जेल के सारे सैनिक, सारे लोग सो गए, किसी को पता भी नहीं चला। केवल वसुदेव और देवकी को पता चला, दोनों भगवान से बातें कर रहे थे। और भगवान ने जन्म लेते से ही उनको बोला कि मुझे आप गोकुल वृंदावन में छोड़ाओ, और वहां नंद नंद की जो पुत्री है उसको लेकर आओ। और वसुदेव के तो हाथ हाथ पैर बंधे हुए थे जंजीरों से, तो वसुदेव ने जैसे ही भगवान को गोदी में उठाया तो उनकी बेड़ियां खुल गई। तो भगवान का जन्म इस तरह से हुआ। लेकिन हम कैसे जन्म लेते हैं? हम जन्म लेते हैं तो रोते हैं, नहीं भी रोते हैं तो रुलाया जाता है। तो ये हमारा जन्म है। तो भगवान का जन्म हमारे जन्म की तरह नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान अपनी इच्छा से जहाँ प्रकट होना चाहे वहां प्रकट होते हैं। भगवान को कोई प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जन्म कहाँ होगा, हम खुद डिसाइड नहीं करते। आप में से किसी ने डिसाइड किया है आपका जन्म कहाँ होगा? किसी ने डिसाइड नहीं किया है। इसी से पता चलता है कि हमारा जन्म और भगवान के जन्म में अंतर है। वी डोंट डिसाइड वेयर वी आर बोर्न, और कैसे हम मरेंगे ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो भगवान को कब जाना है इस संसार से, वो भगवान खुद डिसाइड करते हैं, भगवान के फीचर में। हालांकि परमात्मा के फीचर में तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं हमेशा, लेकिन अपने साक्षात स्वरूप में कब पृथ्वी पर आना है, कब जाना है, ये भगवान खुद डिसाइड करते हैं। कोई भगवान को फोर्स नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो ये जो भगवान के जन्म के बारे में, भगवान के कर्मों के बारे में जो सटलिटीज हैं, भगवान के कर्म भी अलौकिक रहते हैं। चाहे राम अवतार में देखें या कृष्ण अवतार में, अर्जुन को विराट रूप दिखाना, और 6 दिन के जब भगवान थे तभी पूतना जैसी महान राक्षसी को मार देना, और कितने असुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, और न जाने का कौन से बड़े बड़े असुरों को मार देना बिना कोई शस्त्र उठाए, कितने अद्भुत कार्य हैं। और कंस जैसे महान असुर को मारना, और पांडवों की किस तरह से भगवान ने रक्षा किया। तो भगवान के अलग अलग कर्म है। 16,108 रानियों से विवाह करना, और बताया गया है कि कृष्ण का जब विवाह हुआ तो 16,108 रानियों से जब विवाह हुआ, 8 से अलग अलग हुआ, और 16,100 रानियों से एक साथ विवाह हुआ। तो जब भी भगवान कृष्ण विवाह करते थे, तो जब 16,100 रानियों से विवाह हुआ तो हर रानी के साथ एक कृष्ण थे। तो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली 16,108 रानियों के साथ एक साथ प्रेजेंट रहे एट द सेम टाइम, पर्सनली, डायरेक्टली। तो ये भगवान के लिए ही पॉसिबल है, और इस भगवान की इस एक्टिविटी की कोई नकल भी नहीं कर सकता। तो भगवान के लिए 16,108 रानियों से विवाह करना और उनके साथ साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट होना, वो भी इस तरीके से कि हर रानी को लगता था कि कृष्ण केवल मेरे ही साथ हैं। ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक बात है, कोई भी ह्यूमन बीइंग इसकी नकल नहीं कर सकता। और ये भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। ऐसे तो भगवान परमात्मा के रूप में जितने लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं इस संसार में, सबके हृदय में वास कर रहे हैं परमात्मा के फॉर्म में। तो 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। तो इस तरह से भगवान के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कर्म है, वो दिव्य होते हैं। तो जो इस दिव्यता को स्वीकार करता है, समझ लेता है अच्छी तरीके से, उसको क्या होता है, उस तक बाद हम पुनर्जन्म है, तो उसको बार बार, उसको दोबारा बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, इस साइकिल में नहीं फंसना पड़ता।
दोबारा जन्म उसका इस संसार में नहीं होता, और वो भगवान के नित्य धाम, he attains it my eternal abode, माम एति, वो मेरे पास आता है। तो ये लाभ है भगवान के जन्म और कर्म को समझने का। तो मोटा मोटा जो हमने परंपरा के ऊपर डिस्कशन किया, उसका कंक्लूजन ये है कि हम परंपरा से अपने आप को एफिलिएट करें और लॉजिकली समझे चीजों को, और समझने के बाद परंपरा में हम जुड़े और सही टीचर के गाइडेंस में जुड़े। तो आगे जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, आगे भगवान कहते हैं 10वें श्लोक में, भगवान कहते हैं कि वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम आगतः। Being freed from attachment, fear, anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past have become purified by knowledge of me. Thus they all attained transcendental love for me. तो इस ज्ञान को स्वीकार करके कई लोगों ने भगवान की शरण ली और भगवान को फिर प्राप्त किया। तो आगे 11 से 15 के श्लोक में भगवान जो है कास्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट कास्ट सिस्टम को एक तरह से डिसोन करेंगे भगवान। तो भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, कहते हैं कि ये था मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते यः देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. फिर आगे कहते हैं चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। According to the three modes of material nature and work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। गीता में जातिवाद का विरोध किया गया है। जो 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या क्या हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार? वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। लेकिन इसका आधार क्या है ये समझना जरूरी है। इसका आधार बर्थ नहीं है। इसका आधार क्या है? गुण कर्म विभागशः। गुण, कौन व्यक्ति किस गुण में है उससे डिसाइड होता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। किस व्यक्ति का कौन सा वर्ण है ये उसके गुणों से डिसाइड होता है, ना कि उसके जन्म से। हो सकता है कोई व्यक्ति का जन्म किसी ब्राह्मण के परिवार में हुआ हो, लेकिन उसका क्वालिटी जिस गुण में वो है वो तमोगुण हो, उसके अंदर गुण शूद्र के हो, तो उसको शूद्र माना जाएगा। और अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया है, अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है तो उसको ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक कोई अगर डॉक्टर है तो जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा। जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर का बेटा है उसको डॉक्टर स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा नहीं। ये कोई पॉलिटिशियन का बेटा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो उसको प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर लिया जाए, भले इसके अंदर योग्यता 0 है प्राइम मिनिस्टर बनने की, ऐसा नहीं है। तो नेपोटिज्म को कोई स्थान नहीं है वैदिक लिटरेचर में। भगवान कृष्ण खुद यहाँ पर कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण में सिस्टम जन्म विभाग से,
कि जन्म के आधार पर मैंने डिसाइड किया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं बोला। ये कैटेगराइजेशन है क्वालिटीज के बेसिस पे, और ये डिवीजन भगवान ने क्रिएट किया व्यक्ति की क्वालिटीज के ऊपर बेस करके। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप जो है वो आपके अंदर क्वालिटी शूद्र की है लेकिन फिर भी आपको ब्राह्मण बोला जाएगा, ये भगवान ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, भगवान ने ये कहा कि अगर आपके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो आप ब्राह्मण का कार्य करिए, अगर आपके अंदर क्षत्रिय के गुण है तो आप क्षत्रिय का कार्य करिए, उसके कर्तव्य का पालन करिए। अगर आपके अंदर वैश्य के गुण है तो आप वैश्य का काम करिए, अगर आपके अंदर शूद्र के गुण है तो शूद्र का काम करिए। अगर आपके अंदर शूद्र के गुण है तो आप आर्टिफिशियली ब्राह्मण मत बनिए, और अगर आप ब्राह्मण है तो आर्टिफिशियली आप कोई और वर्ण का काम मत करिए। तो अगर आप डॉक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप डॉक्टर का काम अच्छी तरीके से करिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पॉलिटिशियन का काम मत करिए या क्षत्रिय का काम मत करिए। तो ये नेचुरल है, ये एकदम नेचुरल सिस्टम है। तो हो सकता है कोई ब्राह्मण का बेटा, उसके अंदर क्षत्रिय के गुण भी हो सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है वैदिक लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में कई बार ऐसा हुआ है। तो ये जो कई बार ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको जन्म से एसोसिएट कर दिया गया है, ये हिंदू समाज में बहुत ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्रैक्टिकल लेवल पे, और रहा है पिछले कुछ सालों में। तो ये चीज समझना होगा। तो भगवत गीता जन्म पे आधारित जो कास्ट सिस्टम है, जाति मतलब जन्म, जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन नहीं है वैदिक शास्त्रों में, गुणों और कर्मों के आधार पर। और हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को यह अधिकार है पूरी तरीके से कि अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप करे, हर व्यक्ति को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है या क्षत्रिय को है, शिक्षा का अधिकार सबको है। हाँ, बट अगर आप शिक्षा प्राप्त करिए गुरुकुल, पहले जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें सारे वर्णों के लोगों को, सबको अधिकार प्राप्त था शिक्षा प्राप्त करने का। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण को ही अधिकार प्राप्त था या क्षत्रिय ही गुरुकुल जाते थे, ऐसा नहीं है, सबको अधिकार प्राप्त था गुरुकुल जाने का। और वहां पे व्यक्ति के गुणों की परीक्षा होती थी, उसके अंदर कैसे गुण है, और उसके गुणों उसको प्रोफेशन दिया जाता था। तो अगर कोई किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण है और उसको आर्टिफिशियली क्षत्रिय का रोल दे दिया जाए तो वो उस रोल में फिट नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय में आपको आपको बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप शांति के पक्षधर हैं, शांति शांति कहते हैं, तो आप बॉर्डर पे जाएंगे तो आप डर जाएंगे जब आप देखेंगे कि गोलियां चल रही है और जो है बंदूकें चल रही हैं और मर रहे हैं लोग, तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो आपके लिए वो चीज नहीं है। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, ये जनरल पे डिपेंड नहीं करता। का सिस्टम भगवान इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वर्ण सिस्टम को भगवान इनकरेज कर रहे हैं। अभी क्या सोसाइटी में हो रहा है कि जिसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी हो सकती है वो भी शूद्र का काम कर रहे हैं। शूद्र का मतलब है जो सर्विस क्लास है, वो शूद्र वर्ग है एक्चुअली। और जिसके अंदर शूद्र के गुण है वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं या ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तो जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी के हिसाब से काम ना करके दूसरा काम करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट पैसे के लिए या रेपुटेशन के लिए। जिस वजह से क्या हो रहा है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब देखेंगे हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है,
कहीं ना कहीं अगर अपने नेचर के अनुसार काम नहीं करेगा, उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा, उसके अनुसार उसका प्रोफेशन नहीं होगा, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन कई बार लोग देख लेते हैं कि अरे वैश्य जो है उनके पास काफी धन है, तो भले ही उनके अंदर क्वालिटी वैश्य वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो जस्ट किसी के धन को देखकर आकर्षित हो जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर लूंगा, मैं भी धनी बन जाऊंगा। लेकिन क्योंकि उनका नेचर नहीं है वैसा, तो वो कर नहीं पाते उस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम होती है कई बार। तो लेसन ये है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूज योर करियर इन लाइफ बेस्ड ऑन योर गुण एंड कर्मा, नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके गुण आप देखिए, आप कौन से मोड ऑफ नेचर में हैं। इसमें आपको आपके जो फैसिलिटेटर हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो डिवोटीज हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपके स्वभाव के अनुसार आपको आपको कार्य चूज करना चाहिए। और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का इम्पोर्टेंस है लेकिन शूद्र का इम्पोर्टेंस नहीं है। शूद्र का भी इम्पोर्टेंस है, ब्राह्मण का भी इम्पोर्टेंस है, क्षत्रिय का भी इम्पोर्टेंस है, वैश्य का भी इम्पोर्टेंस है, सबका इम्पोर्टेंस है। So we should choose our career based on our guna and karma, not the external factors. So our superiors, our mentors, our teachers, they help us in finding our own quality. हमारे गुण को ढूंढने में, हमारा नेचर ढूंढने में वो हमारी हेल्प करते हैं। और जो आप प्रोफेशन चुने उसमें आप एक्सेल करें। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर हैं, उनकी आवाज अच्छी थी तो उन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन बनाया, सो शी बिकेम सक्सेसफुल। लेकिन अगर वो एक्ट्रेस बनने की कोशिश करती तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो उन्होंने अपने नेचर को समझा, अपने गुण को समझा और उसके अनुसार अपना प्रोफेशन चूज किया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय बर्थ इज रिफ्यूटेड इन भगवद गीता। तो कास्ट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द बर्थ, it is defined by the quality, guna and karma. तो आगे भगवान बताते हैं प्रकृति के बारे में। भगवान 14th श्लोक में बता रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। There is no work that affects me, nor do I aspire for fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in fruitive reactions of work. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। All liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. तो एक चीज हमें और समझना चाहिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन हो, भगवान भी जब प्रकट होते हैं संसार में तो भगवान भी कुछ एक्शन करते हैं, लेकिन भगवान को कोई एक्शन अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जब प्रकट हुए थे उन्होंने बाली को छुपकर मारा, और बाली को जब उन्होंने मारा तो वही बाली जो है वो अगले जन्म में वो शिकारी बना, और शिकारी ने फिर बाण चलाया, भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा और भगवान की मृत्यु हो गई। तो कर्म का फल सबको मिलता है, जनरली लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि
नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नो वर्क अफेक्ट्स मी। तो भगवान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भगवान असुरों को मारते भी हैं तो कोई असर नहीं पड़ता भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ से कोई बेनिफिट नहीं होता, भगवान उसको बेनिफिट नहीं लेना चाहते। He doesn't aspire for fruit of action. नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो भगवान, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका कुछ फ्रूट ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे हम जॉब करते हैं मान लीजिए, तो बदले में उसके हम सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सैलरी प्राप्त करने के लिए जब हम जॉब करते हैं तो हम जॉब में फंस जाते हैं, क्योंकि जॉब नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा, और सैलरी नहीं मिलेगा जब सैलरी नहीं मिलेगा तो फिर हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। So we are dependent on the salary, and salary will come by work. So we are entangled, we are bound by the work. अगर आप प्रोफेसर की बात नहीं मानेंगे कॉलेज में, तो प्रोफेसर बोल देगा कि आपको रेस्ट्रिकेट किया जाता है कॉलेज से, और रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। डिग्री नहीं मिलेगा तो आपको वो चाहिए, यू वांट द डिग्री, तो आपको फिर यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप अपना फायदा कुछ करना चाहते हैं तो आप बंध जाते हैं वहां से। भारत जब आजाद होने वाला था, आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो कई सारे यंगस्टर्स ने जो अंग्रेजों द्वारा दी जा रही थी डिग्रियां, उन डिग्रियों को त्याग दिया, बोले हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो बाइंड नहीं थे अंग्रेजों के हिसाब से काम करने के लिए, उनकी एजुकेशन लेने के लिए वो बाइंड नहीं थे, क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं था। सो इन द सेम वे, क्योंकि हमें कुछ बदले में चाहिए होता है, अपने कर्मों का फल हम भोगना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम कर्मों के चक्र में बंध जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए कुछ ऐसा अटेनेबल नहीं है, भगवान अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है। भगवान जो भी काम करते हैं वो सिंपली लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। तो भगवान असुर को मारते भी हैं तो उससे भगवान का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए भगवान फंसते नहीं, बनते नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। भगवान कोई भी एक्शन करते हैं तो भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप में तो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उनका कोई फायदा नहीं है, फायदा तो दूसरे लोगों का है। जस्ट लाइक कोई कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है कोई, तो अगर वो किसी को डेथ सेंटेंस सुना रहा है तो वो तो लॉज के अकॉर्डिंग सुना रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज है उसके हिसाब से सुना रहा है, तो ही इज नॉट बाइंड बाय द, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज मर्डरर। हालांकि कई लोग बोलते हैं जुडिशियल किलिंग ऑफ टेररिस्ट, लेकिन एक्चुअली वो तो लॉज के अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहा है। इसी तरह से भगवान भी जो है वो कुछ अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो बनते नहीं है। सो ये बात अगर कोई समझ लेता है तो वो भी कर्मों के चक्र में नहीं बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये चीज पहले और भी कई लोगों ने इस तरीके से कार्य किया है, तो अर्जुन तुम भी इस तरीके से कार्य करो। तो ये चीज हमें जाननी चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ये ज्ञातमोक्षस्य शुभात्। So even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम कहना कर्मणो गति। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is. तो हमें अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि अकर्म क्या है और विकर्म क्या है और कर्म क्या है। कर्म मतलब एक्शन, विकर्म मतलब फॉरबिडन एक्शन, और अकर्म मतलब इन एक्शन। अब इसको आप एग्जैक्टली लिटरली
इनएक्शन वैसे नहीं समझना है कि कुछ करना ही नहीं, खाली बैठे रहें, सोते रहें। इनएक्शन डजंट मीन दैट। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव रहें और सोते रहें और डल बैठे रहें, ऐसा नहीं है। अकर्म क्या है उसको समझना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर्मों के बारे में, 3 प्रकार के एक्टिविटीज के बारे में भगवान बता रहे हैं। वो है कर्म, विकर्म और अकर्म। इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो कर्म क्या है? कर्म मतलब कि वो एक्टिविटीज जिसको भगवान ने वैदिक लिटरेचर में सैंक्शन किया है, वो एक्शंस, वो एक्टिविटीज जिसको भगवान ने वैदिक लिटरेचर में सैंक्शन किया कि आप ये चीज कर सकते हैं, जिसको पायस एक्शन भी बोलते हैं, पुण्य कर्म बोलते हैं जिसको, पुण्य का काम। इसकी डिटेल में बहुत बहुत चीजें कही जा सकती है, बट बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम वी विल अंडरस्टैंड इट इन वेरी शॉर्ट। तो पायस एक्शन है ये। उसका फल क्या होगा? वेदों में बताए हुए जो कर्तव्य हैं, जो कर्म है, उनको आप करेंगे तो उसका फल ये होगा कि आपको बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो, और स्वर्ग में बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट होगा। ये 9th चैप्टर में और डिटेल में बताया गया इसके बारे में, लेकिन यहाँ भी इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर वेदों में बताए गए, वेदों में सैंक्शन किए गए एक्शन आप करते हैं, उसको पायस एक्शन बोलते हैं या कर्म बोलते हैं। और कर्म का फल यह है कि आपको उससे एंजॉयमेंट मिलेगा। कहीं एंजॉयमेंट आपको इसी पृथ्वी लोक पर ही मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है, तो वो आपको इस जन्म में मिल जाएगा। लेकिन कुछ एंजॉयमेंट ऐसा होता है जो आपको, आपकी बॉडी, करंट बॉडी इस इतने एक्सपीरियंस, इतने हायर खुशी के लिए डिजाइंड ही नहीं है। एक लेवल से ज्यादा खुशी मिल जाएगी तो मर जाएगा। तो इस ऐसी खुशी को एंजॉय करने के लिए उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है, उसको डिफरेंट बॉडी दिया जाता है, और वो एंजॉय करके कोई भी पाया सेक्शन हम करते हैं उसके कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके जैसे क्रेडिट्स बोलते हैं। आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ आपका बैंक एक बैलेंस बढ़ता है, अकाउंट बैलेंस आपका बढ़ जाता है, और फिर उस अकाउंट बैलेंस से आप क्या करते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, या पृथ्वी पर ही एंजॉय करते हैं। और फिर जब वो एंजॉय कर करके वो क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, तो फिर आप पृथ्वी पर आ जाते हैं और फिर से एक्शन करने लगते हैं। तो ये आने जाने का चक्कर चलता रहता है। इसका अपोजिट है जस्ट विकर्म। विकर्म मतलब कि वो एक्शंस जिसको वैदिक लिटरेचर में प्रोहिबिट किया गया है, जिसको पाप कर्म भी बोलते हैं, जिसको करने के लिए मना किया गया है, जैसे चोरी करना, मर्डर करना, और इस तरह के जो अपराध होते हैं, जो झूठ बोलना और लालच करना और घूसखोर करना, ये सब चीजें, तो इसको कहते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब है पाप कर्म या सिंफुल एक्शन, या वो एक्शन जिसको वेदों में रोका गया, मना किया गया कि ये मत करो। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति करे, चाहे जानबूझ करके करे चाहे अज्ञान के कारण करे, अगर कोई व्यक्ति वेदों में बताए हुए रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको पाप कर्म कहते हैं, और उसका परिणाम होगा सफरिंग। आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा। तो जैसे सुखों का क्रेडिट होता है, वैसे दुखों का भी क्रेडिट होता है, उसके भी बदले में पिटाई होती है। कुछ पिटाई ऐसी होती है जो आपको इसी शरीर में मिल सकती है, लेकिन कुछ पिटाई ऐसी होती है जो इस शरीर में दी जाएगी तो ये शरीर उसको झेल नहीं पाएगा। ये शरीर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सुख और दुख के लिए ही डिजाइंड है, तो ये शरीर मर जाएगा एक लेवल से ज्यादा अगर दुख मिल गया तो उसके लिए ज्यादा दुख देने के लिए एक अलग शरीर दिया जाता है, जिसको जो नरक लोक होता है वहां। तो वो जब मिलेगा उसको वहाँ, तो जब एक सफिशिएंट लेवल अपने कर्मों का फल वो भुगत चुका होगा, तो फिर वो तो इसको कहते हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म मतलब उसको नाम दिया गया कर्म, और पाप कर्म का मतलब है विकर्म। लेकिन जो सबसे ज्यादा करने योग्य एक्शंस हैं उसको कहा गया अकर्म। अकर्म का मतलब है
कर्म करना भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के बताए अनुसार एक्शन करना। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति आनंद में रहता है, उसको बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, और उसको आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की प्राप्ति होती है। उसका सांसारिक पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा भगवान से उसका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, भगवान से प्रेम उसका डेवलप हो जाता है, फिर वो भगवान के धाम में शाश्वत रूप से रहता है। इसको कहते हैं अकर्म। अकर्म वो अपने अपने लिए नहीं करता, अकर्म वो किसके लिए करता है? भगवान के लिए। उसको कहते हैं अकर्म, या आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो एक्शन करता है, उसको कहते हैं अकर्म। उससे उसका हृदय प्योरीफाई होता है, उसका आत्मा जो है वो संसारिकता से विरक्त होता है, और फिर वो उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। रहेगा संसार में ही, एक्शन करेगा, लेकिन उसका गोल क्या होगा? भगवान की प्रसन्नता। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी को मर्डर कर दे तो उसको क्या मिलेगा? अगर वो अपने लिए मर्डर कर रहा है तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, जैसे हमारे आर्मी के लोग होते हैं, तो उनको वीर चक्र दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। इस तरह से कोई एक्शन करता है अगर भगवान के लिए तो उसको अवार्ड मिलता है। और भगवान के लिए, क्योंकि अवार्ड भगवान के लिए कोई एक्शन किया जा रहा है, इसलिए उसको आनंद की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो खुद के लिए कुछ मना किया करने के लिए, जो वैदिक शास्त्र में जिसको प्रोहिबिट किया गया, भगवान क्यों मना करते हैं कोई भी कार्य करने करने के लिए? इसलिए नहीं कि भगवान को उससे कुछ मतलब है। एक सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि सबको बराबर मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। उसके लिए कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि आप जितना आपको नीडेड है उतना आप लो और बाकी दो। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, है ना? अपना आपको जितनी नीड है उतना आप लीजिए। तो वो शेयरिंग के कुछ रूल्स हैं, है ना? तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। तो ये क्लियर है। अकर्म का मतलब है वो कर्म जो हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, ये करना चाहिए। और विकर्म तो सबसे बेकार है, इसको बिल्कुल त्यागना चाहिए। कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म करेंगे तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर आप फैमिली में सेटल होंगे, अच्छे पुण्य कर्म करते जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, मरेंगे, फिर से दोबारा जन्म लेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। और इस बीच में थोड़े बहुत सफरिंग और ये सब, थोड़ा बहुत जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चलता रहेगा। सो जो सबसे ज्यादा करने के लिए जो भगवान कह रहे हैं वो है अकर्म। भगवान कह रहे हैं इस इंटीग्रेट साइंस को अच्छी तरीके से समझो अर्जुन। सो द पॉइंट इज हियर कि कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिचुएशन। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं कि किसी और के किए गए कर्मों का फल आपको मिल जाता है। हम जो कर्म करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है। तो अभी हमें जो मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर कांटों बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें बबूल बबूल का ही वृक्ष लगेगा, उसमें कांटे ही मिलेंगे। बबूल के बीज बोया है अगर, तो उसमें आम नहीं मिलेगा। तो अभी हमें जो मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का एक रिजल्टेंट रिएक्शन है। तो डेस्टिनी क्या है? कई बार लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी, हम तो डेस्टिनी में बिलीव नहीं करते, व्यक्ति अपने हाथों से अपना कर्म बना, अपना डेस्टिनी निर्माण करता है। ये बात सच है, व्यक्ति अपने हाथों से अपनी डेस्टिनी का निर्माण करता है। तो आपको अभी जो आप अपने एक्शन कर रहे हैं उससे आपकी डेस्टिनी निर्मित हो रही है, और पहले जो आप एक्शन कर चुके हैं उससे आपकी अभी की डेस्टिनी, जो अभी आप रिसीव कर रहे हैं, अभी जो सुख दुख आपको मिल रहा है, अभी जिन सिचुएशंस में आप हैं,
वो आप ही के कर्मों का फल है। मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो मेरे ही कर्मों का फल है। सो कई बार ये होता है कि कोई कहता है कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। भगवान ने आपके साथ कुछ नहीं किया। आप जो डिजर्व करते हैं वही आपके साथ हुआ, मैं जो डिजर्व करता हूँ वही मेरे साथ हुआ। ये मेरे ही कर्मों का फल है। इस चीज को समझना है। तो ये चीज भगवान जो है वो समझा रहे हैं इस लेसन के माध्यम से। तो इसके डिटेल में अगर जाएंगे तो भगवान इसके बाद बता रहे हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। अगर हम कोई भी एक्शन करें अपनी लाइफ में, अगर हम बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके, तो हम बाइंड हो जाएंगे। और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम केवल सर्विस के लिए कर रहे कोई चीज, इफ यू आर डूइंग सिंपली फॉर सर्विंग फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस, अपनी ड्यूटी समझकर हम कर रहे हैं कोई कार्य, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए अगर, सो देन वी विल नॉट बी बाउंड बाय द सिचुएशन। सबसे बेस्ट है कि हम भगवान की खुशी के लिए करें। भगवान के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उससे आनंद प्राप्त होता है। तो जो आगे का जो सेक्शन है इसमें भगवान इसी के बारे में और डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे हमें एक्शन करना चाहिए। वर्स नंबर 34 में भगवान बता रहे हैं, तद विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-reliant souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो यहाँ पर सेक्रीफाइसेस के बारे में भगवान बता रहे हैं। So I will read out the verse. Verse number 25. Verse number 25 से 42 के बीच में Krishna is explaining about the yagya part. Any questions until now? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक तो पूछ सकते हैं, then we move forward. जी प्रभु जी, there are some questions in the chat box. Yes, please. Yes. सोनू आर्य जी पूछते हैं, why most of the historians say that there is no God in history, even though we have scriptures like Bhagavad Gita and Vedas? There is no God in history. देखिए ये एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके बारे में। उस बुक का नाम है द बैटल फॉर संस्कृत। उस बुक को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कुछ। एक्चुअली भारत जब अंग्रेजों के शासन में था उस समय एक ब्रांच ऑफ नॉलेज को इन्वेंट किया गया, काइंड ऑफ, उसको कहते हैं इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी का मतलब है कि आप इंडिया को समझने का प्रयास करें एक बाहर के चश्मे से, not how we are but
somebody outside, somebody is trying to understand us from outside. तो इसको कहते हैं इंडोलॉजी। तो होता क्या है कि ये एक, इसको आप कह सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, ये काल का प्रभाव है। और ये कलयुग जो है ये एज ऑफ क्वारल और हिपोक्रेसी है। तो कॉलोनियल पावर्स जो थी, जो कि अब्राहमिक ट्रेडिशंस से ज़्यादा प्रभावित थी, और अब्राहमिक ट्रेडिशंस क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, इनकी अगर बात ना भी करें तो इवन जो वेस्ट में भी जो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया जिसमें कि एक तरह से एथिज्म को प्रमोट किया गया और डार्विनियन थ्योरी को प्रमोट किया गया। सो पॉइंट ये था कि जो वैदिक नॉलेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज की जो बुक्स हैं, संस्कृत का जो ज्ञान था उसको उन्होंने बाहर के चश्मे से देखने की कोशिश की। तो उन्होंने इस चीज को काफी डिस्टॉर्ट किया। इसको आपको समझना पड़ेगा। ऑफ कोर्स भारत की जो कल्चर था उसमें भी कई सारे इम्प्योरिटीज एंटर हो गई। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम एक एंटर हो गया, जिसमें कि जन्म को ही जो है वो वर्ण का क्राइटेरिया माना जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि भारत में भी एक वर्ग जो है वो उसका कुछ हद तक शोषण हो रहा था। और जब कॉलोनियल पावर्स आई भारत में, जब इस्लाम का अटैक हुआ, तो उनका तो एक ही एजेंडा था कि हमें लूटना है चीजों को। सो दे वर टोटली अगेंस्ट दिस वैदिक वे ऑफ लाइफ, और संस्कृत के ऊपर बेस्ड जो लिविंग थी उसके वो अगेंस्ट में थे। तो उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और अंग्रेजों ने भी हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो अगर वो वेदों को मान लेंगे, अगर वो वैदिक नॉलेज को मान लेंगे, तो उनका जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, उनकी बाइबल गलत प्रूव हो जाएगा और आपका कुरान गलत प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो वैदिक नॉलेज के हिसाब से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो सिविलाइजेशन है, वो काफी हायर सिविलाइजेशन है। उसमें एक सटल साइंस है। वो लाइफस्टाइल इतनी आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं बातों को? तो पॉइंट ये है कि अगर आप वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को अपनाएंगे तो उनके लिए ये चीज पूरी बिल्कुल नहीं है, ये टोटली डिफरेंट था। तो आप उनको अगर इंडिया पे रूल करना है, तो इंडिया के लोग अगर हायर नॉलेज फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जब तक वो इंडियन नॉलेज को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे तब तक वो इंडिया पे रूल कैसे कर पाएंगे? और इंडिया के लोगों को जब तक वो अपने अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से दूर नहीं करेंगे, तब तक जो है इंडिया के लोग उनकी बातों को मानेंगे नहीं। सो दे वर वेरी गुड एट पॉलिटिशियंस, दे वर वेरी गुड पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिक्स में बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने गहराई में गए इंडियन इंडियन कल्चर के, इंडियन संस्कृति के गहराई में गए, और उन्होंने अच्छी तरीके से समझा कि इंडियन थॉट प्रोसेस क्या है, और फिर उसको उन्होंने जड़ से काटने की कोशिश की। उनके पास पॉलिटिकल पावर तो थी ही। इंडिया के जो राजा लोग थे, जो किंग्स थे, वो आपस में ही उनकी यूनिटी नहीं थी, तो वो उनकी स्ट्रेटेजीज को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने गुरुकुल्स को बंद कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने बहुत जो है वो डिमीन करने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। तो इंडियन लोगों का ही विश्वास अपने कल्चर पर से उठ गया। आप समझ रहे हैं बातों को? क्योंकि आप देखिए वैदिक वैदिक कल्चर में क्या क्या कोर कंसेप्ट्स हैं। अगर आपका वन ऑफ द कोर कंसेप्ट है री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का विज्ञान। तो अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म है नहीं, तो वो आपके अगेंस्ट में रहेंगे अगर आप पुनर्जन्म की बात करें अगर। और जो लेफ्टिस्ट मॉडल है, जो कि डार्विनियन थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि बेस्ड है आपका पूरी तरीके से
रेसेस के ऊपर, इवोल्यूशन के ऊपर, कि आपकी एक पर्टिकुलर रेस है, ह्यूमन सोसाइटी, वो इवॉल्व हो गई, वो सबसे हायर डायमेंशन पर है, और जो है वो स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई है, देयर इज नो गॉड इन कंट्रोल, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो वो भी आपके अगेंस्ट में रहेगा, आप जैसे रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट मानने जाओगे। और वैदिक नॉलेज, वैदिक जो भगवत गीता है, पुराण है, और महाभारत है, रामायण है, ये तो पूरा आपके रीइंकार्नेशन के ऊपर ही बेस्ड है। हमारी हमारी जो जो हिस्ट्री है, तो वो कई सालों की बात करते हैं। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि वैदिक कल्चर जो है वो हर एक दिशा से अटैक झेल रहा है। उसके अलावा भारत के अपने अंदर के लोग, वो ही अपने कल्चर को ठीक से नहीं जान पाए। आप समझ रहे हैं बातों को? तो दे वेर वेरी अपोलोजेटिक अबाउट अवर ओन कल्चर। भारत के कई सारे स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स ऐसे थे जिनको वेदों पर ही विश्वास नहीं था। जैसे ही क्रिश्चियंस ने बोला, जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम लोग आपको सिविलाइज्ड बना देंगे, तो दे ऑल्सो एग्रीड कि हाँ हाँ सिविलाइज्ड बना देंगे ये लोग हमें। तो कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी भारत में एक वेस्टर्न मॉडल को एक्सेप्ट किया, और उनका विश्वास अपने कल्चर के ऊपर से नहीं था। सो पॉइंट मेरा ये है कि हमारे इसमें भगवत गीता और वेद जैसे ग्रंथ थे, लेकिन हमारे लोगों को इतना दृढ़ विश्वास नहीं था उन ग्रंथों पर, और उस विश्वास को धीरे धीरे और ज्यादा खंडित किया गया, बार बार तोड़ा गया उस विश्वास को भी। तो इस वजह से हमारी करंट जनरेशन इस पर बिल्कुल फेथ नहीं करती। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? Ji Prabhuji. There is another question. Working with a detached mind, does this mean a mind focused on God? What does doing karma with Nishkam Karma Yoga mean? देखिए, निष्काम कर्म योग का मतलब ये है कि आपको एक्शन करना है, और वो एक्शन करना है जो जो आपको अलाउ किया गया है, आपके लिए परमिसेबल एक्शंस हैं, लेकिन उसके बदले में जो फ्रूट, उसका जो रिजल्ट है, उसको एंजॉय करने की इच्छा आपके अंदर नहीं है। अपने लिए उसका जो फ्रूट है वो आप उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, लेकिन एक्स्ट्रा आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं निष्काम, निष्काम कर्म। मतलब आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, तो यह है निष्काम, निष्काम कर्म। और आपको आपको जब फ्रूट में आपका इंटरेस्ट नहीं, आपको आपका फोकस केवल प्रोसेस में है, और आप फ्रूट को इमेजिन कर करके आप इतना, वो आपको मैटर नहीं कर रहा है, आप केवल प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो नेचुरली रिजल्ट उसका अच्छा ही आएगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो निष्काम कर्म जो है वो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और निष्काम कर्म योग की बात करें, जैसे योग वर्ड आप ले आते हैं पिक्चर में, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग में आप एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपका स्वभाव है, गुण और कर्मों के आधार पर वो आप कर रहे हैं एक्शन, और आप उसका जो रिजल्ट है वो उसको आप भगवान के पर्पस के लिए, या अपने कनेक्शन, भगवान से अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान का एक मिशन है ना, भगवान ने बताया संसार में कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का पर्पस क्या है संसार में आने का? धर्म की स्थापना करना। तो अगर आप धर्म की स्थापना करते हैं अपने एक्शन के द्वारा, तो बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कि आप
आप किसके लिए कर्म कर रहे हैं? आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इसको आप कहेंगे, जो थर्ड चैप्टर में आता है, यज्ञार्थात कर्मणो मित्र लोकोयम कर्म बंधन, कि आप यज्ञ के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो फिर आप बंधेंगे नहीं उससे। लेकिन अगर आप खुद खुद एंजॉय करने के लिए काम करेंगे तो नेचुरली फिर आप उसमें बंधेंगे, आपको आप ब्लैकमेल होंगे कि देखो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आपको फल चाहिए, आपको एंजॉय करना है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से करिए। तो कर्म योग जहाँ भी वर्ड आ जाता है, योग मतलब कि वो चीज भगवान के पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है, भगवान जो चाहते हैं हमसे करने के लिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला कि अर्जुन आप युद्ध करो, अर्जुन को भगवान ने बोला आप युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ और युद्ध करो, जो 18 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की खुशी के लिए अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो युद्ध का फायदा अर्जुन खुद नहीं उठाना चाह रहे, तो भगवान की खुशी के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? तो इसको भक्ति योग भी आप कह सकते हैं कि भगवान के लिए किया आपने, लेकिन अगर बदले में उसने अपने लिए कुछ नहीं किया तो वो क्या हो गया? निष्काम कर्म योग हो गया। कर्म उसने क्या किया? अर्जुन ने जो वो बेस्ट काम कर सकता था, वो है युद्ध करना। ही वॉज ए क्षत्रिय, हिज ड्यूटी वॉज टू फाइट, उसका रोल सोसाइटी में फाइट करना था, तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया, लेकिन किस लिए? भगवान चाहते थे कि आप युद्ध करो, तो इसलिए वो एक तरह से निष्काम कर्म योग हो गया। तो जब अब योग वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स पर्पज इज टू सेटिस्फाई कृष्ण, भगवान का पर्पस फुलफिल करने के लिए। तो और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट गॉड गिव्स स्वर्ग एंड मुक्ति टू ओनली दोज परफॉर्मिंग अकर्मा और सो कॉल्ड एक्टिविटीज to give happiness to the god? Isn't it being selfish? Actually भगवान को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान तो ऑलरेडी हैप्पी है अपने आप में, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमें भगवान की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आत्मा का जो स्वरूप है, दैट इज वो परमात्मा का अंश है, वो भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जीव जो है वो मेरा अंश है, तो हम भगवान के अंश हैं। तो जस्ट लाइक दिस फिंगर, तो कोई फिंगर है वो भगवान से, जब वो फिंगर पूरे शरीर से कनेक्टेड है तो फिंगर की यूटिलिटी है। जैसे ही फिंगर का कनेक्शन पूरे शरीर से कट जाएगा तो फिंगर बिकम्स यूजलेस। तो उसी तरीके से हमारा कनेक्शन भगवान से है ओरिजिनली। तो अगर हम भगवान से कनेक्शन में रहते हैं, जिसको योग कहा जाता है, इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्ण, कनेक्टेड टू गॉड, कनेक्टेड टू भगवान, then we are satisfied, we get the nourishment. अगर पत्ती पेड़ से कनेक्टेड रहेगी तो पत्ती को पोषण मिलेगा, पेड़ तो जो है वो है, तो पत्ती के लिए ये नीड है, तो भगवान का कोई इसमें रोल नहीं है। What is the difference between consciousness and soul? Consciousness is the symptom of soul. तो चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। तो ये सिम्टम है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि सोल एग्जिस्ट कर रहा है? अगर कॉन्शियसनेस है वहां पर अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है मींस वहां पे आत्मा है, वहां पे सोल है। Prabhuji, there's a question. बताइए। On what grounds should we choose our parampara and how can we find the right guru?
आप इंक्वायरी करिए, देखिए आइडियल प्रोसेस तो ये है कि जैसे जस्ट लाइक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिलेटेबल है। मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप कैसे चूज करेंगे? आप देखेंगे कि स्मार्टफोन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, और कौन से मॉडल्स क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। तो जो फीचर्स आपको सूट करता है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर गुरु चूज करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन मार्केट में अवेलेबल। एक तो है एक्सेसिबिलिटी, आपके लिए क्या एक्सेसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु, कलयुग का स्पेशली ये लक्षण है कि लोगों की इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में इतनी नहीं रहती, तो गुरु